हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक एक ऐसी कड़ी है जो हर दिल को एक साथ जोड़ती है। यू मे बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट म्यूज़िक विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विद एनी पर्सन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और आज हमारा ये सेगमेंट खास तौर से म्यूज़िक पर ही डिवोटेड है। और इस पूरी बात के ऊपर, इस पूरे म्यूज़िकल इशू के ऊपर हमारे साथ आज बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अ वेरी फेमस माथुर। वेलकम टू द शो अविनाश। Thank you so वंस much. अगेन अ वेरी Happy New Year to you too, and I would like to wish all the viewers also Happy New Year. Thank you. Well, we know कि you belong to the world of music. You Yeah. come from music. And music कहीं ना कहीं आपके कहते हैं खून में है. It जी is there in your soul. It's there in your heart. जी But what made you come to the world of music? Was it by choice or was it somewhere a passion that got developed into a career? Actually, since childhood, I was attracted to the music because my grandparents were into the music, but they were not professional musicians, but they were very good in music. So I had four of my grandparents. They all were good in some in leading instruments, or some were good in singing and all. So my father adopted from them little bit, but my later on my father could not continue because he joined Indian Army. So I think so that's how it has come into my blood also. So I was always attracted to the music, but not on the beginning stage, but very later stage on my career I realized that I can do good in music actually. So some of my teachers and my gurus also told, Vinash, you should continue the music, you are doing very well. So then finally I decided, okay, I will concentrate more on music. So was there any specific age when you actually started taking a formal training in music? अगर हम कहें कि आपने formal training ली और आपके वो कौन से गुरु थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपके म्यूज़िकल करियर में, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी है? Actually, I started music when I was in class 9th, and but that was not, I was not so much serious, and I had my guru late Shri Rajrani Chaube, and she always inspired me, and she told, Vinash, you can do well, go with this. And I was learning, but not it was not in my mind that I will go for a career in music also. So later on when I finished my schooling and went to college, and there also I got some teachers, and they told that we have I showed them the certificates and the previous record, school records. They told then you should go for music. Then I joined BA as a music, and then after BA I did my masters also in music vocal. And my all teachers and gurus, they supported me a lot. Finally it has become a part of my life. And now let's talk about your experience and your time in Muscat, where you're obviously imparting training to the kids and children out there as a music teacher. Yeah. How long has it been in Muscat, first of all? I have completed almost 10 years. This is my 11th year running in Muscat. It's a very nice place, and I'm working for Indian School Muscat. People are very nice, and they are trying to you can see a small India there. People are very nice, and they follow Indian culture. I really like, and the children who love Indian music, and I'm also getting inspired. And you know, once you are with the children, people say you learn always from the children. So I always welcome, through teaching them, I always learn something new from them and new ideas from them. But when you say you're imparting training to the Muscat kids out there, कोई एक specific field है, एक specific zone है जिसमें आप बच्चों को musical training देते हैं, like classical or something, कि is it a general musical genre जो आप cater करते हैं वहाँ के बच्चों को? एक्चुअली तो आजकल का जो समय है वो एक जर्नल म्यूज़िक का ट्रेंड चल रहा है. जैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक भी है, काफ़ी लोग क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखते हैं, पर आजकल की जो जनरेशन है वो या तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, हाँ जी. तो क्लासिकल म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, और वो लाइट म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान है उनका, या वेस्टर्नाइज हैं तो थोड़ा तो वेस्टर्न क्या म्यूज़िक वहाँ की पर आप तरफ. इंडियन म्यूजिक ट्रेनिंग देते हैं उन बच्चों को, कि जी. इज इट कि आप वहाँ के बच्चों को उन्हीं के टेस्ट की म्यूजिकल ट्रेनिंग देते हैं? अब दोनों तरह से है, दोनों तरीके से है. हम लोग
कोशिश यही रहती है कि बिकॉज़ वी आर इंडियंस और हम भारतीय जो संस्कृति है हमारी, हम उनको, और जो म्यूज़िक है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुत ही सुंदर आईना है। हम म्यूज़िक के द्वारा उनको सिखाएं कि भारतीयता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, क्योंकि म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिखाने की, उनको मोरल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। म्यूज़िक के द्वारा सिखाने में बहुत हेल्प मिलती है, हमको सहायता मिलती है, उनको बता सकते हैं गानों के लिरिक्स में क्या लिरिक्स होने चाहिए, उनकी क्या धुन होनी चाहिए, म्यूज़िक कैसा होना चाहिए। हम सब ये ध्यान रखते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं भारतीयता नज़र आनी चाहिए। और हम जानते हैं कि आपने एक गाना भी कंपोज किया अपनी एल्बम से, जो है चमके गगन में जैसे हो एक तारा। या ये गाना हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपने ये गाना कब कंपोज किया था और ये गाना किस तरह से बाहर मस्कट में लिया गया है, वहाँ के बच्चों ने इस गाने को कैसे कहीं ना कहीं लिया है? जी जी, एक्चुअली ये गाना मैंने, बिकॉज़ मेरे दिल में कहीं ना कहीं भारत हमेशा जवान रहता है, तो इस गाने में आप देखेंगे कि एक इनक्रेडिबल इंडिया टाइप की झलक मिलती है उसमें। और इस गाने को बेसिकली मैंने एक प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्राम थीम बेस्ड प्रोग्राम था, उसके लिए मैंने लिखा था। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि वो गाना जो है उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो मुझे एक स्पेशल उसकी तरह ट्रैक पे ले जा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक अच्छे लेवल पे रिकॉर्ड करूँ, तो इसलिए मैंने ये गाना अपनी एल्बम में ऐड किया है और बहुत ही सुंदर है। और इसके अलावा इस एल्बम के कोई और गाने जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो खास तौर से आपके दिल के काफ़ी करीब है? जी हाँ, मेरी एल्बम का नाम है हम पंछी आज़ाद गगन के, तो मेरी एल्बम का जो टाइटल सॉन्ग है हम पंछी आज़ाद गगन के, बहुत ही अच्छा गाना है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रिटी पे, वर्क टुगेदर, साथ ही हाथ बढ़ाना, लाइक दैट देयर आर 8 ट्रैक्स इन दिस एल्बम। तो कुछ हमारे देश से रिलेटेड भी कोई ट्रैक है उसके अंदर? यस यस यस, बहुत सारे मतलब 8 गानों में से 3-4 गाने ऐसे हैं जो हमारी भारतीयता और हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर झलक देते हैं। जैसे कि एक तो चमके गगन में जैसे हो एक तारा, और एक गाना है हम पंजाबी हम गुजराती, और एक है नया जागरण लाएंगे। नया जागरण लाएंगे एक बहुत ही अच्छा ट्रैक है, उसमें हम ये दर्शाया गया है कि कैसे हम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। सो मेरे सारे गीत जो इस एल्बम के जो गीत हैं उन सब में कोई ना कोई मोरल वैल्यू छुपी हुई है और एक संदेश छुपा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये दिखाता भी है कि कहीं ना कहीं आप आज भी आप एक बाहर के देश में रह रहे हैं, एक बाहरी दुनिया में रह रहे हैं, समवेयर अवे फ्रॉम योर इंडियन रूट्स, लेकिन वो इंडियन कल्चर आज भी आपके दिल के अंदर बसा हुआ है। सो व्हेन यू आर इम्पार्टिंग दैट ट्रेनिंग ऑन इंडियन म्यूजिक बाहर के बच्चों को, आपको कैसा वहाँ से रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलता है? वो वे इंटरनेशनल किड्स जो कभी उनके लिए, जैसे हमारे लिए वो इंटरनेशनल किड्स हैं, नॉट इंडियन, वैसी हम उनके लिए नॉन इंडियन रेजिडेंट्स होंगे, हम नॉन इंडियन हैं, तो जब वो इंडियन म्यूजिक सीखते हैं आपसे तो उनको कैसी फील मिलती है और आपको उनसे जो फीडबैक आता है वो कैसा होता है? जी, actually it depends and varies children to children. Some children are really very in touch with the Indian culture, तो उनकी फैमिली वैल्यूज़ जो उनके पास हैं उस हिसाब से वो बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं और बहुत ही श्रद्धा रखते हैं इंडियन म्यूज़िक के प्रति। पर जैसा कि हमने देखा कि आजकल टाइम चेंज हो रहा है और जनरेशन एक्स आ रही है, तो कुछ मिक्स क्राउड आप देखेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो कि वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं या वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो बस ये है कि हमारी कोशिश फिर भी ये रहती है कि वी आर इंडियंस। जब आजकल अगर देखा जाए तो इंडियन म्यूज़िक की वैल्यू ज़्यादा है बाहर के देशों में, लाइक यूएस, कनाडा, अदर कंट्रीज़ में, यूके, लंदन, दे आर अडॉप्टिंग इंडियन म्यूज़िक लाइक एनीथिंग। तो हमारी कोशिश यही रहती है एज ए टीचर, एज ए म्यूजिशियन, कि हम अपने म्यूज़िक को ना छोड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाएं। और हमारा एज ए टीचर हमारा ये है कि हम उसको और रुचिकर बनाएं। बच्चों को जब भी आप सिखाते हैं तो उस समय या स्टूडेंट्स को जब आप ट्रेन करते हैं तो यू हैव टू गो इनटू देयर वे एंड द माइंड, उनके माइंड और सोल में जाना पड़ता है समझने के लिए कि उनको क्या चाहिए बेसिकली। सो द लेवल शुड बी द सेम एंड देन यू हैव टू मेक इट लिटिल मोर interesting for them. I hope then they can learn better. But what would you like to say on this take कि आप बाहर जाके
इंडियन म्यूजिक को किसी एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जी। सिखा रहे हैं बच्चों को फॉर अ जी। गुड कॉज, जी। बट इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो देयर इज डेफिनेटली अ डिमाइस दैट हैज़ बीन हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। Yes. हम अपने देश में रह के कहीं ना कहीं इंडियन रूट्स से दूर होते जा रहे हैं, जी। और जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो इंडियन रूट्स को अपना रहे हैं। डू यू जी, जी। थिंक दिस इज इन द गुड पिक्चर और अ सैड पिक्चर? हाँ, एक्चुअली वेल हो तो ऐसा ही रहा है, ऐसा कि देखने को मिलता है आजकल का जो म्यूज़िक, आजकल की जो फ़िल्में बन रही हैं उनमें जो म्यूज़िक आ रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो है वो कुछ गलत डायरेक्शन की तरफ चला गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज कर दिया है, उन्होंने बिज़नेस की ओर डाइवर्ट कर दिया है, और तो थोड़ा सा सैड लगता है कि सोच के कि ये म्यूज़िक इज़ वेरी प्योर फॉर लाइफ and it's very pure for all of us, so we have to see the importance of music. So I would like and I request to the people, those who do all these things, कि आप ऐसा करें जो कि हमारी भारतीयता और भारतीय संस्कृति और कल्चर को बना भी के रखे, बना के कहीं ना रखे। कहीं बना के रखे। जी। तो चलिए आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आज एक अविनाश की बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन जो हमारे इंडियन रूट्स, इंडियन कल्चर की बात करती है। ये हमारा देश है। चमके गगन में जैसे हो एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा, महके चमन में फूलों का ये रस सारा, रस सारा, रस सारा, रस सारा, रस सारा, छलके मगन होके गंगा सी पावन धारा, ऐसा ये मेरा देश है, अरे ऐसा मेरा संदेश है। माथे की बिंदिया में चंदा का नूर सारा, हाथों की चूड़ियों में घूमे ये ब्रह्मांड सारा, पायल की धुन पे झूमे ये जग सारा, ऐसा ये मेरा देश है, अरे ऐसा मेरा संदेश है। देखा कि ज़्यादातर जो आपके गाने हैं वो इंडियन एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इट्स इंडीड वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप इतने दूर रह रहे हैं, पिछले एक दशक से आप भारत के बाहर हैं, लेकिन आज भी उतने ही रूटेड हैं इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूज़िक से जितने शायद तब थे। तो जी। तब में और आज में आपको इंडियन म्यूज़िक के अंदर क्या चेंज दिखता है? एक्चुअली चेंज तो जैसा कि समय समय पर देखने को मिलता है कि पहले का जो म्यूज़िक था उसमें थोड़ा सूदिंग, हीलिंग और मेलोडी ज़्यादा थी। आजकल के गानों में ऐसा फील होता है कि थोड़ा नॉइज़नेस ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है। शोर ज़्यादा है, एक्साइटमेंट भरे गाने हैं आजकल के ज़्यादातर। लेकिन समय के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। आप मेरे गानों में 70 के दशक की या 80 के दशक की झलक आपको मिलेगी, क्योंकि वो म्यूज़िक थोड़ा हीलिंग था। आजकल का म्यूज़िक मुझे थोड़ा सा नॉइज़ी म्यूज़िक लगता है। तो मैं अपने सभी फेलो म्यूजिशियंस से और सभी से मतलब मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं संगीत जिसके लिए जाना जाता है, संगीत का मतलब क्या, मधुरता, वो मधुरता बनी रहनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मधुरता बनी रहे, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ गुड फीलिंग इन द हार्ट जब आप देखते हो कि भारत में रहने वाले लोग भी भारतीय म्यूज़िक को कहीं ना कहीं उसकी सराहना करें। बिकॉज आज भी अगर आप देखें तो मैं अगर खुद का भी एक एग्जांपल दूँ तो हमारे होठ खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं अगर कोई पुराना गाना चल रहा है, बिकॉज उसमें म्यूज़िक था। जी। आज अगर हम देखते हैं तो जो गाने आते हैं, कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है कहीं ना कहीं। एंड दैट्स सो व्हेन यू प्रमोटिंग इंडियन म्यूज़िक आउटसाइड, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग इन इंडियन म्यूज़िक बाहर की तरफ? एक्चुअली एज ए इंडियन, जो इंडियन म्यूज़िक हमारा है उसकी जो असली पहचान क्या है उसकी, एक तो वो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, परंपरा जो भी है हमारी, उससे जुड़ा हुआ म्यूज़िक है। हमारा संगीत देखिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे बचपन से लेके और लाइफ के एंड तक अगर आप देखिए तो सारे रिचुअल्स और सारी परंपराएं म्यूज़िक के द्वारा ही संपन्न होती हैं, कहीं भी आप देख लीजिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करें और उससे बहुत प्यार करें, और
कहीं ना कहीं हमारी एज ए म्यूज़िक टीचर मेरा भी रोल ये है कि मैं उसको इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करूं और अपने बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस बताऊं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और एज ए इंडियंस आई थिंक सो वी शुड लव आवर इंडियन म्यूज़िक एंड यस, प्रमोट सो इंडियन चलते म्यूज़िक। चलते एक आखिरी लास्ट मैसेज फॉर अ व्यूअर्स ऑन अ म्यूजिकल नोट आप क्या देना चाहेंगे? मैं सभी व्यूवर से कहना चाहूँगा कि संगीत हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण वी कैन से कि सोल ऑफ आवर लाइफ। तो अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को आप म्यूज़िकल बनाइए, म्यूज़िक से प्यार करें, अच्छा म्यूज़िक सुने और हमेशा संगीत में रहें। ज़रूर। विद दिस अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी हमारे साथ कुछ बातें शेयर करी एंड डेफिनेटली so हमारी much. यही उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उन्होंने भी ये सीखा होगा कि म्यूज़िक कहीं ना कहीं हमारी सोल को डिफाइन करती है और जी। सोल को अगर हम ना खोएं तो ही अच्छा है। जी, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। मच अविनाश। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत आप शुभकामनाएं। सभी को भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू Thank सो you. मच। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं साक्षी आपसे इजाज़त लूंगी, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस, ब्लेस्ड एंड अ हेल्दी न्यू ईयर। कीप योर रेजोल्यूशंस, live up to it, enjoy life and live every day with a smile and full heart. Till then, it's goodbye.